So we are representing any object by a row matrix. If point is there, you will have a single row. अगर लाइन है तो एक के नीचे एक कोऑर्डिनेट आएंगे, मतलब रो का नेम वो पॉइंट का नेम होगा. अगर लाइन है ए बी तो ए आएगा रो का नेम, वहां पर आएगा कोऑर्डिनेट x1 y1, बी को आएगा x2 y2. इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट रेक्टेंगल, ट्रायंगल, square here. Now in last lecture we have started with different type of transformations. In that we have first seen identity transformation. Now we are always having transformation matrix as a b c d, and in that by taking the values for a b c d we will get different type of transformations. Okay, so I will share the screen till the time people will join, and then we start. Can you explain that sparse matrix again? हाँ एक yes. Okay. 2D transformation. Now we want to denote any point. यार क्या हो रहा है इसे? Point is represented as row matrix or column matrix. Last time before. लास्ट टाइम क्विक नोट्स में ही लिया था ना. मैम वो साइन इन नहीं हुआ, इसकी वजह से ऐसा दिखा रहा है. हाँ मैम, आप साइन आउट हो इसलिए वो नहीं दिख रहा. तो ले नहीं रहे वो अकाउंट. इससे क्यों नहीं कर रहे? रुको.
इसका ये आता है ना कहीं इधर से। ठीक है, so we start with 2D transformation. We are representing matrix. So point is represented in a row matrix or column matrix. Last time we have seen that to represent point, we use row matrix or column matrix. So if point is xy, its name is P, then it is represented as xy or column matrix xy. Now in last lecture we have seen a system of linear equations. System of linear equation is ax plus cy, ax plus cy is equal to E we have taken ax plus cy, ये बहुत छोटा आ गया, is equal to E and dx plus dy is equal to F. Now we want to write this system in the form of matrix. So matrix form में हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट आपको आता है A C B D into matrix column matrix XY is equal to column matrix EF, and another representation for this system is we are considering first row matrix point XY, then matrix ये आएगा A C B D and then you'll get point EF. Now for our course we are considering second way this representation, and we are taking any object as one by one, and object means our points. So first single point is there, line means you have 2 points A and B, triangle ABC, and how we are writing that transform matrices that we have seen in last lecture. Now ये point जो है वो होता है हमारा कैपिटल X. सो पॉइंट XY को हम बोलते हैं कैपिटल X. उसके बाद जो मैट्रिक्स उसे मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं T. इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसे हम बोलते हैं X स्टार. सो X मीन्स एनी ऑब्जेक्ट, T इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स and X star is transform object. Now transformation matrix T is denoted by the matrix ABCD. So we have where T is equal to A, B, C, D is our transformation matrix. Now when we get transformation matrix,
depending on values of A, B, C, D, we will get different type of transformations. So first, in last lecture we have seen identity transformation. So identity transformation का meaning क्या है कि अगर पॉइंट में हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई किया तो हमें वही पॉइंट मिलना चाहिए. तो क्या वैल्यूज आने चाहिए मैट्रिक्स में एबीसीडी के कि हमें वही पॉइंट मिलेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके. A0 ऐसा है. हाँ, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 है ना. सो विल राइट दैट. Yes, ma'am. So identity transformation T is equal to 1 0 0 1. So it implies that values of ABCD as A equal to 1, B equal to 0, C equal to 0 and D is equal to 1. So when you multiply matrix XY by matrix T 1 0 0 1, your transform matrix is XY only. So this is our first. Now second transformation matrix is scaling. C-A-L-I-N-G. Scaling. Scaling means what? There is increment in row or column. So it is depending on scaling in x coordinate, scaling in y coordinate, scaling in xy both coordinates, and then uniform scaling. So we will see what is mean by scaling. लाइन का है, लाइन का बाद में देखेंगे, पहले हम पॉइंट्स देखेंगे. तो स्केलिंग में हमें है 4 टाइप्स. सो फर्स्ट है Can you scroll up a bit? दिस. Yes, ma'am. Identity transformation. ma'am. हाँ, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन. Okay, ma'am, done. स्केलिंग. फर्स्ट है स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट. ये मैट्रिक्स याद करने के लिए बहुत इजी है. अभी स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, जो हमारा एबीसीडी है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट पे जहाँ पर एक्स एक्स आता है. अभी जब हम मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, यहाँ पर एक्स लिखा मैंने, यहाँ एक्स लिखा, वाई, ये एक्स वाई, तो जो एक्स एक्स पोजिशन पे जो एलिमेंट आएगा वो हमारा जनरेट करेगा स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट. तो स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट में हमें जो एलिमेंट ए रहता है उसके लिए वैल्यू देने, और बाकी जो भी एलिमेंट है मैट्रिक्स के वो हो गया आइडेंटिटी के. तो आइडेंटिटी में क्या आता है, B is equal to 0, C is equal to 0 and D is equal to 1. So whatever you are getting matrix A0 0 1 gives us scaling in x coordinate. Okay, so this is a matrix for scaling in x coordinate. Is this clear? Scaling से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट उसकी जगह छोड़ के उतने डिस्टेंस में आगे जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये मेरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंसिडर कर दिया और यहाँ पर मेरा पॉइंट है, सपोज मेरा पॉइंट है 1 2. अगर 1 2 पर मैंने ये अप्लाई किया एंड आई विल टेक a इक्वल टू 3. ओके, if we take a equal to 3 and apply the matrix on the point 1 2, so 1 2 into 3 0 0 1, what will be the answer? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, so you get 3 and 2. हाँ मैम. so ये क्या हुआ, पॉइंट की पोजीशन 1 2 से
3 2 को ट्रांसफॉर्म हो गई. सो दिस इज कॉल्ड एज स्केलिंग इन x कोऑर्डिनेट और x डायरेक्शन. सो हमारा पॉइंट था फर्स्ट 1 2 एंड दैट विल शिफ्टेड टू 3 2. तो ये है मेरा x स्टार और ये है ऑब्जेक्ट x. x था उस पर मैंने a इज इक्वल टू 3 करके जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई किया, देन माय पॉइंट 1 2 शिफ्टेड टू द पॉइंट 3 2. सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2. ये मैंने गलत लिखा है, 1 2 नहीं है, ये क्या है 2 1 है. 1 2 पॉइंट यहाँ पर आएगा. x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2. तो ये पॉइंट यहाँ पर है 1 2 मतलब x1 y2. तो ये पॉइंट है 1 2 दैट इज शिफ्टेड टू 3 2. सो ये 1 2 शिफ्ट हो गया 3 2 को. यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी पोजीशन गलत लिखी है. तो ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट आ गया. ओके, इज दिस क्लियर? स्केलिंग में क्या हो रहा है, सिर्फ x डायरेक्शन में पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है. सो इट इज कॉल्ड एज स्केलिंग इन x कोऑर्डिनेट. या 1 2 2 आपका सेम ही रह रहा है, 2 2 सेम है, सिर्फ x का पॉइंट 3 यूनिट से आगे गया x डायरेक्शन में. सो इट इज कॉल्ड एज स्केलिंग इन x कोऑर्डिनेट. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Second type is scaling in y coordinate or scaling in y direction. So second scaling in, तो इसमें क्या आएगा अभी आप बताओ, मैट्रिक्स में क्या हो चेंज होगा? It will change scale to the y coordinate. हाँ, तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, क्या रहेगा इसमें, जहां पर y y आ रहा है y का एलिमेंट d वैसे ही रहेगा और बाकी जो है वो सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो आपका मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 d and you are giving value to d and then your position of the point changes in y coordinate with respect to y direction. तो अगर हमने इसी सेम पॉइंट 1 2 पर ये अप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलता है, we'll take d is equal to 4. Okay, so let d is equal to 4. Then what happens with the point? Our point is 1 2. So here is the point 1 2. Now we are applying matrix 1 0 0 4 on point 1 2. So what we'll get? Tell me matrix multiplication. 1 8 will come. We got 1 8. 8. तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये है मेरा x and after applying transformation matrix I am getting x star. तो ये 1 यहाँ पर है, 8 है, सो मैं यहाँ 2 4 6 8 लिया तो ये पॉइंट बनेगा 1 8. नाउ यू कैन सी दैट पॉइंट 1 2 अगर इसी में देखा तो 1 2 यहाँ पर आएगा और 1 8 यहाँ आ रहा है. सो सिर्फ y डायरेक्शन में पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गई. इट इज कॉल्ड एज स्केलिंग इन y कोऑर्डिनेट. इज दिस क्लियर? सिमिलरली अगर हमने लिया स्केलिंग इन x एंड y कोऑर्डिनेट तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, थर्ड है हमें स्केलिंग इन x and y कोऑर्डिनेट. AD दोनों आएगा. तो a एंड d दोनों आएगा. सो मैट्रिक्स बनेगा a 0 0 d.
जो भी ए और डी की वैल्यूज देंगे उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज स्केलिंग इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. इसके लिए एग्जांपल देने की जरूरत है. सो इफ वी टेक a equal to 3 and d is equal to 4. So tell me what is your transform point on 1 2. On 1 2 we are applying transformation 3 0 0 4. Point is 38. 3 8. So your point 1 2 is transformed to the point 3 8 when we take scaling in both x and y coordinate. Okay, clear? Now next type of scaling is uniform scaling. यूनिफॉर्म नाम में ही आया है इसका मतलब क्या होगा. यू विल हैव a equal to d. Uniform scaling means a equal to d. Whatever value of a you will take, same value you have to take for d. So for that you can take a equal to d means 3 3 or 4 4. So your matrix becomes on 1 2 we are applying uniform scaling. So 3 0 0 3. So what will be the point? 1 6. 1 6 how? 3 6. Sorry, 3 3 6. 3 6. So this is our point by using uniform scaling. So everybody clear? Scaling. मैम ये हर वक्त एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के साथ ही रहेगा ना, मतलब यूनिफॉर्म हाँ, स्केलिंग. स्केलिंग बोला तो डायगोनल को ही, मतलब जो एक्स एक्स वाई वाई जो पोजीशन आती है ना वहीं पर. ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज वी हैव रिफ्लेक्शन. Second type is transformation matrix, that is called as reflections. So reflections में क्या है, अगर point मैं एक बार सिर्फ बता देती हूँ. यहाँ का पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस साइड. If my point is in first quadrant, then its reflection is in fourth quadrant. So this type of transformation is called as reflections. So how we'll get reflections? By taking values of A, B, C, D that we will see, and that matrices. So for reflections there are five types of reflections. So we'll see one by one. So first is reflection. First is reflection through x-axis. ये ऐसे ही है, reflection through x-axis, reflection through y-axis, then reflection through the line y equal to x, then reflection through the line y equal to minus x, and then reflection through origin. These are the five. So we'll see one by one. So first, reflection through x-axis. So for that matrix is, अभी हम पॉइंट कंसीडर करके उसके बाद उसका मैट्रिक्स लिखेंगे. ठीक है, तो व्हाट विल डू, विल ड्रॉ. ठीक है, this is my y-axis, this is our x-axis, and now we'll take point 2 2. It's reflection through x-axis. ये x-axis है, इसका रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज क्या आएगा? 2 minus 2.
So his reflection is 2 minus 2. So we know point is 2, 2. We want to apply a matrix on this and we want answer as 2 minus 2. So I will get my answer 2 minus 2. What should the matrix here? ये 2 आना चाहिए, मतलब ये 1 है, यहाँ पर 1 0 0 minus 1 और ये 0 minus 1. So this is your transformation matrix for reflection through x-axis. So this is fixed. So we will get values as a equal to 1, b equal to 0, c equal to 0 and d is equal to minus 1 for reflection through x-axis. Now can anybody tell me what is the matrix for reflection through axis? वाई एक्सिस में से क्या आएगा? फिर पॉइंट में दे देती हूँ, उसके बाद बता देना. सपोज वी हैव पॉइंट्स 1 2 3, ये 1 2 है. नाउ पॉइंट इज दिस 3 1. इट्स रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस. I'm 3 and minus 1. कैसे 3 एंड -3 -3 and 1 इसका रिफ्लेक्शन minus 3 and 1, आएगा ना, मिरर इमेज. Sorry ma'am, -3 and 1 ma'am. हाँ, क्या आया? -3 and 1. ओके, सो हमारा पॉइंट है 3 1. उस पर कुछ तो मैट्रिक्स अप्लाई करना है और हमें आंसर चाहिए -3 1. तो क्या मैट्रिक्स आएगा यहाँ पर? -1 0 0 1 -1 0 0 1. Now we want action to the line y equal to x. Third is मैम रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस दिखा सकते हैं क्या ऊपर का? हाँ, रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर इमेज. बस इतने ही देखना है हमें. ओके मैम. So ये हुआ रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, देन रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस. नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y इक्वल टू x. किसी को पता है लाइन y इक्वल टू x का ग्राफ क्या आता है? it is on the x-axis. लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन. जैसे कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया, एक 2 पॉइंट मिले तो हम भी ग्राफ लाइन का ड्रॉ कर सकते हैं. y इक्वल टू x मतलब x इक्वल टू 1 लिया तो y भी 1 आएगा, तो पॉइंट आएगा 1 1, देन आएगा 2 2. अगर -1 लिया तो -1 -1, देन वी आर गेटिंग अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ये है हमारा लाइन का ग्राफ y इक्वल टू x. अभी इसमें हमें देखना है कि पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा. मतलब अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज 2 1. सो इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट क्या आएगा? इधर अभी मिरर हमारा लाइन पर है y इक्वल टू x. -2 -1 नीचे नहीं जाएगा ना, तो इसका रिफ्लेक्शन इस साइड आएगा, इधर. अभी देखो ये पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट क्या हुआ? 2 1. x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2. सो व्हाट इज अवर पॉइंट? देन मैट्रिक्स इज, हमारा पॉइंट है 2 1. अगर मैंने रिफ्लेक्शन लिया
तो मुझे पॉइंट मिल रहा है 1 2 1 1 1 1 नहीं मतलब 1 0 0 1 1 0 कहाँ पर, मतलब यू आर सेइंग 1 0, 0 1 ये तो आइडेंटिटी हुआ, आइडेंटिटी तो ये 2 1 का आंसर 2 1 आना चाहिए, है ना। हाँ हमें आंसर 2 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आना है चाहिए। 1 आने के लिए क्या चाहिए, 2 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ 1 मिलेगा। नहीं, हाफ 0 0 2। हाँ जी। अब हम क्या करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, रो इज मल्टीप्लाइड टू कॉलम, और जो भी उसका एडिशन आएगा वो आंसर हमारा 1 आता है। तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कोई भी नंबर लिया तो वो नहीं आएगा, यहाँ पर 1 है तो मैंने यहाँ 1 लिया, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, सो यू आर गेटिंग 1, करेक्ट। अभी मुझे सेकेंड पॉइंट 2 चाहिए, तो 1 क्या 0 करना पड़ेगा, 1 0 1 0, correct. So when you take 2 1 and this matrix 0 1 1 0, then you are getting the point 1 2. So our reflection matrix through the line y equal to x is 0 1 1 0. Okay, is this clear? yes ma'am. Ma'am, can you repeat this one? Okay. Reflection through the line y equal to x means this is the line passing through origin. अभी ये लाइन है, हमारा लाइन का ग्राफ है, इस लाइन में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया 2 1, इस 2 1 का मैं यहाँ पर मिरर रखूंगी तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पर दिखेगा, और वो पॉइंट आ गया मेरा 1 2। सो मेरा पॉइंट था 2 1 और रिफ्लेक्शन करके पॉइंट बन रहा है 1 2। सो आई वांट टू फाइंड द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। सो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स कैसे बना मेरा, ये मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर आना चाहिए 1। तो रो एंड फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम आई एम गेटिंग आंसर 1। तो इसके लिए मुझे ये एलिमेंट क्या चाहिए, 0 1। सो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, सो विल गेट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर 1 मिल गया। 2 आने के लिए क्या चाहिए, ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू सेकेंड कॉलम, जब ये रो इसको मल्टीप्लाई करेंगी तो मुझे आंसर 2 चाहिए, तो यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, तभी मुझे ये 2 मिलेगा सेकेंड एलिमेंट, और मेरा 2 1 चेंज होगा 1 2 को, एंड द मैट्रिक्स विच आई गॉट is this matrix 0 1 1 0. So this is a transformation matrix for reflection through the line y equal to x. Okay, clear? So Yes, हमें ma'am. ये याद रखना है कि वैल्यूज क्या है रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y इक्वल टू x के लिए, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 0. C equal to 1, D is equal to 0. Next is reflection through the line y equal to minus x. अभी कोई तो ग्राफ बनाओ, कैसे आएगा ग्राफ, रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y equal to minus x. कैसे आएगा ग्राफ लाइन का, line will pass through quadrant 2 and quadrant 4. क्या, सेकंड क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंट 4 के ओरिजिन से हाँ। क्रॉस। सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के ओरिजिन से लाइन जाएगी, मतलब यहाँ 1 है तो ये -1 आएगा, यहाँ का 1 लिया तो वो -1, तो ये एक पॉइंट होगा 1 -1, ये अगर पॉइंट है तो ये लाइन होगी ऐसी। अब ये ओरिजिन से जा रही है ऐसे समझो, मतलब यहाँ पर मेरा ओरिजिन है, इसमें से जा रही है, ठीक है।
दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल टू -x। अभी इसमें जो पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन लेना है। सपोज यहीं पर वही करते हैं सेम हम। यहाँ पर है मेरा -1 -2 पॉइंट है, ये 1 2, और मैं ये पॉइंट लेती हूँ यहाँ का, ये है मेरा पॉइंट -2 1। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? इस पॉइंट को आएगा, ठीक है। -2। हाँ, तो क्या आएगा पॉइंट वो? -1 2, x इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2। तो अभी मुझे मैट्रिक्स बताओ कैसे आएगा। ये पॉइंट है हमारा -2 1, जिस पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई करना है, और मेरा आंसर आ रहा है -1 2। तो क्या आना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स? 0 -1 -1 0। हाँ करेक्ट, 0 -1 -1 0। अगर ये मल्टीप्लाई करोगे, -2 into 0 is 0, plus 1 into -1 is -1, so we'll got point -1, and -2 1 multiplied to -1 0, you'll get -2 into -1 is 2, plus 1 into 0 is 0, so 2. So the transformation matrix for reflection through the line y equal to -x is 0 -1 -1 0. So we'll write values of a b c d. A is equal to 0, b is equal to 1, no, b is equal to -1, c is equal to -1, and d equal to 0. So this is the matrix for deflection through the line y equal to -x. Is this clear? Yes, ma'am. Now Yes, sir. last type Yes, ma'am. of reflection. So reflection through origin. रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन मतलब क्या है? अगर पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका रिफ्लेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका रिफ्लेक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो रिफ्लेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, इस तरह से। देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन। So we will take one example and from that we will find a matrix. मेरा -1 -2 1 2 -1 -2. Suppose we will take point this 1 2. इसका रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन मतलब यहाँ से यहाँ पर आना चाहिए, तो वो क्या आएगा? -1 -2। -1 -2। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा? Point is 1 2. We want to reflect that, and the point is -1 -2. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन मिलेगा? 1 0 0 -1। 1 लिया तो वो ये बनेगा ना, सॉरी -1। हाँ करेक्ट, -1 0 0 -1, 1 into -1 -1, 2 into 0 0, तो वो -1 ही आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम किया, 1 into 0 is 0, 2 into -1 is -2, so you'll get the point -1 -2. So reflection through origin के पॉइंट मिले हमें, a equal to -1, b equal to 0, c equal to 0, d is equal to -1. Clear? So these are the 5 types for reflection. The next is shearing. So before going to shearing, I will give one question. For that you have to draw a graph. The question is, consider a straight line. कंसिडर करेंगे इसका, ठीक है। So consider a straight line
joining the points A and B. Where A is 1, 3 and B is 2, 5. Apply scaling in X and Y coordinate by factors 2 and 3 and write the transformed line. Okay, first is apply scaling in X and Y coordinate by factor 2 and 3 and draw the original line and transform line. So first write by taking matrix and then draw the graph. Okay, पहले हम ये करेंगे. First tell me what is how we write the object line. Line कैसे लिखेंगे हम? हमारा ऑब्जेक्ट x रहता है, T is a transformation matrix and then we are getting x star. So our x is line AB. So यहाँ पर मेरा A है, B है और ये मैं लिखती हूँ A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2. Now tell me वो ऑब्जेक्ट x AB के कोऑर्डिनेट हमें दिए है तो वो x होगा 1, 3, 2, 5. हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी दिया है. क्या दिया है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स? अभी आपने देखा तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में हमें बोला है कि स्केलिंग इन x and y coordinate by factors 2 and 3. So which values we have given for transformation matrix T? गिवन इंफॉर्मेशन में कौन सी वैल्यूज दी है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के? स्केलिंग इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है? स्केलिंग इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट इज A0, 0, D और रिस्पेक्टिवली हमें ए एंड वैल्यूज दिए हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में क्या है. तो हमें क्या वैल्यूज दिए है अभी? नाउ टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ A एंड D? Ma'am, equals to 2 and D equals to 3. हाँ, A इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 3, बाकी सब हमें 0 से फिल करना है. तो ये वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. हमें ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट कब मिलता है x स्टार? जब x पर हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T अप्लाई करेंगे तब. सो हमारा x है, T है. टेक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एंड टेल मी द वैल्यूज ऑफ x स्टार. सो x इज 1, 3, 2, 5. उस पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई कर रही हूँ 2, 0, 0, 3. ना आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट इज द आंसर? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके बताओ क्या मिल रहा है. सो फर्स्ट एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम. सो 1 into 2 is 2 plus 3 into 0 is 0. So 2 plus 0 is 2. Second element means first row, second column. So 1 into 0 is 0 plus 3 into 3 9. So ये मिला 9. What is this element? 4. Second row first column which is equal to 4. And what is the last element?
15. 15। अभी इसका ग्राफ फाइंड आउट करो, लाइन क्या आएगी। हमारा पॉइंट 13 ट्रांसफॉर्म हो गया 29 को एंड 25 ट्रांसफॉर्म हो गया 415 को। मैम तो 2,9 और 4,15। तो उसमें जाने वाली लाइन ड्रॉ करनी है और हमारी ओरिजिनल लाइन कहाँ पर है और ट्रांसफॉर्म लाइन कहाँ हो गई। तो स्केलिंग मतलब उसका क्या हो रहा है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 13 एंड 25 से जाने वाली लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन इसमें है क्या, हमें रूल्ड पेजेस ऐड करने के लिए मैम इंसर्ट पे होगा इमेजेस में। रूल लाइंस, ग्रिड लाइंस लेनी, ये बहुत ही छोटा है, ये ठीक है, इसमें हम ले सकते हैं, ठीक है। तो भी मैं इसमें ये करते हैं, वही ड्रॉ करना है। ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, दोनों पॉजिटिव है तो हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये ऐसे ड्रॉ करेंगे। इंटू मैथ है ना यहाँ पर, ठीक, ये लिखे मैम वो शेप्स में शायद है ना, शेप्स में शायद ग्राफ का डायरेक्ट शेप है। कहाँ पर हो ड्रॉ गया, में, ड्रॉ में, हाँ उधर ही शेप्स में दिख रहा है मैम। इंसर्ट शेप, नहीं नहीं, साइड में उसके। एक मिनट है, ये वाला बोल रहे हो क्या। हाँ उसमें थर्ड लाइन पे। हाँ हाँ ठीक है, या मैं करके देखती हूँ। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, then we want to draw x axis। अभी पॉइंट्स क्या है 1325, तो हमें ये 15 तक चाहिए। 15 कहाँ पर है, कॉलम को है, सो हम कॉलम के जो पॉइंट है वो 2 से करते हैं, ठीक है। ये 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड यहाँ पर है हमें 1। सो यहाँ पर अगर स्केल मैंने 1 से लिया, दोनों सेम चाहिए, तो यहाँ मैं लेती हूँ 2 4 6 8। ओके, सो हमारा फर्स्ट लाइन का पॉइंट क्या है 1 3, तो 1 3 ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है 2 5, तो ये पॉइंट है। तो हमारी फर्स्ट लाइन ये है, दिस इज ग्राफ ऑफ फर्स्ट लाइन, ठीक है, L1। अभी इसका ट्रांसफॉर्म 2 9 4 15 है, तो 2 9 मतलब पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये आएगा 2 9 एंड 4 15।
ये है. So the line is passing through these 2 points. So ये हमारी फर्स्ट लाइन थी और इसका स्केलिंग x एंड y में होके ये हमें लाइन मिल गई. So this is called as L1 star. So this type of ट्रांसफॉर्मेशन स्केलिंग में क्या हुआ, लाइन का साइज बड़ा हो गया. तुम्हारी L1 लाइन छोटी है, L1 स्टार लाइन बड़ी है. ठीक है, क्लियर है. इससे क्या होता है स्केलिंग से? इज दिस क्लियर? स्केलिंग विल चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ट्रायंगल दिया होता तो छोटा ट्रायंगल का हमें स्केलिंग में बड़ा ट्रायंगल मिल जाता. सो स्केलिंग चेंजेस द साइज ऑफ द ट्रायंगल और शेप ऑफ द ट्रायंगल जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, क्लियर ही है? Yes, ma'am. Okay. Now write the matrix for reflection through the line y equal to x. सेम लाइन का रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y equal to x क्या आता है वो करो. Solve that and tell me the matrix. हम कौन से लाइन का रिफ्लेक्शन लेना है? सेम लाइन ए बी वाला जो अभी दिया है ना, a इक्वल टू 13 b इक्वल टू 25. सेम लाइन का हमें लिखना है रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y इक्वल टू x. और पॉइंट क्या आता है वो बताओ. रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y इक्वल टू x क्या है हमारा मैट्रिक्स T. What is transformation matrix for reflection through the line y equal to x? Zero one one zero. 0 1 1 0. This matrix is 0 1 1 0. Now apply this on the line. मतलब हमें लाइन का इक्वेशन ए बी क्या है 1 3 2 5. इस पर ये मैट्रिक्स अप्लाई करना है 0 1 1 0 and tell me the answer for reflected line. Three one five two. 3 1. ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया 3, सेकेंड एलिमेंट 1, नेक्स्ट एलिमेंट 5 एंड 2. करेक्ट. अभी इसमें से जाने वाली लाइन ड्रॉ करो. 1 3 लाइन का तो हमें हमारे पास है. आप ड्रॉ करके मुझे दिखाओ क्या आता है तुम्हारा आंसर. मतलब ड्रॉ करने के बाद कैसे दिखेगा वो लाइन का रिफ्लेक्शन. यही पर देखा, ये हमारा लाइन है 1 3 2 5. अभी इसका रिफ्लेक्शन है 3 1 2 5 1 5 2. तो 3 1 पॉइंट क्या पर आएगा, ये यहाँ आएगा 3 1 एंड देन 5 2. सो x इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2. तो ये होगा रिफ्लेक्शन ऑफ दिस लाइन. दिख रहा है मिरर इमेज अगर y इक्वल टू x लिया तो. क्लियर? Okay, so now I have some meeting, so I will stop here. So I will download the attendance.
एवरीबॉडी क्लियर दिस? आज जो पढ़े वो सब क्लियर है? स्केलिंग एंड रिफ्लेक्शन। स्केलिंग के कितने टाइप है? Four type. 4 types. Which 4 types? Scaling through x coordinate in y coordinate in x and y and uniform. Uniform scaling. And reflection के? 5. 5. First, reflection through X axis. उसके लिए अभी याद कैसे रखोगे? रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस में हमें चेंज क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स क्या है उसका? रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बस लास्ट में 1 नेगेटिव है। हाँ, लास्ट वाला 1 की जगह हमें क्या लेना है? -1 है ना। रिफ्लेक्शन में हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है 1 0 0 1 और रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस के लिए वो बनता है 1 0 0 -1। करेक्ट। रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस में क्या होगा? एक्स एक्स पोजिशन वाला -1 हो जाएगा, तो वो बनेगा -1 0 0 1। देन रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y इक्वल टू x, उसमें हमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 लेने हैं। मतलब क्या? 1 2 और 2 1 पोजीशन को 1 लेना है, मतलब मैट्रिक्स होगा 0 1 1 0। करेक्ट। एंड रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y इक्वल टू -x के लिए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -1 -1, जैसे कि 0 -1 -1 0। ये हुआ रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y इक्वल टू -x। एंड द लास्ट इज रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, जिसमें हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस देना है, मतलब -1 0 0 -1। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी पर पूरा 2D एंड 3D डिपेंडेंट है। ओके, now tell me, give the attendance, roll number 1 to 10. 7 present. 1 present. 1 7 202 present. 10 present. 1 7 10। ठीक है। 2 present. Ma'am 4 present. 1 7 2 4 1 to 10 खत्म। 8 हाँ 8 10 मैम। 10 डन। 1 2 4 7 8 10। 11 to 20। मैम 13 present. 13 11 मैम। 11 15. 15 रोल नंबर 19. 18. 19 19 और 18 दोनों है। यस मैम। ओके, कंप्लीटेड। मैम 11 13 15 19 18 मैम 9। 9। ओके, ठीक है। 21 to 30। 24 मैम। 21 present. 25 present. एक एक बोलो, चैट बॉक्स में डालो, मैं आई विल राइट। 21 to 30 राइट। 28. 21 present. हाँ 21 28. 25 28 23 मैम 23। हाँ लिखा। 21 मैम 24 27 भी 28 23। मैम 27 भी लिखो क्योंकि मैम उसको 24। नेट इश्यू आ रहा है मैम। मैम 26। 26 और कौन बोल रहा है? Please repeat once again. 24 24 24 लिखा है। मैम 27 लिखा क्या आपने? 27 कौन है? मैम सिद्धांत है, उसको चैट बॉक्स में टाइप करता नहीं आ रहा है इसलिए। हाँ लिखा। 31 to 40 चैट बॉक्स में लिखो आपका अटेंडेंस। 36. मैम 30। हाँ 34 38 36 ये 21 33। हाँ 40 लिखा। 33 हाँ कंप्लीटेड। 41 to
41 present, ma'am. ए 42 40 46 चैट बॉक्स में लिखो, कहाँ से इजीली समझ में आता है। मैम 44 46 मैम 44 46 45 45 completed and last 41 लिखा 51 52 50 50 done okay मैम 55 हाँ ठीक है। Okay, so we'll stop today. I will write down the remaining persons who are giving the attendance in chat box. अगर किसी का रह गया है तो stop for today. Okay, thank you, goodbye, meet on Monday.